Hi guys, welcome to Road to Cat 99. Mock season already start हो चुका है, and if you are someone who are looking build a strategy on how to analyze mock, then this video is for you. मेरा नाम पल्लव गोयल है. I've tracked Cat multiple times. The best score is 99.98, and I'm currently a student of IIM Ahmedabad. Right. In this video, we will see कि आपके mock season में how to best analyze your mocks, right? What should be your strategy and मैंने mocks को analyze कैसे किया था, right? So first I will tell you about how I used to analyze the mock for VRC, for the DLR, for the quant, and then based on that you can design your strategy. My best score in the VRC is 99.46. My best score in the quant LRDI is 99.99, and my best score in the quant is 99.93, and my best score in the CAT is 99.98, and my best score in the ZAT is 99.92, and my best score in the IFT is 99.85. I'm proudly saying that I have converted all Blackie calls, also converted FMS, Auxiliary Jamshedpur, MDI Gurgaon, and other various B schools, right? So let's start the video, right? First, coming on to the VRC section, right? Let me tell you how I used to do it. I will also share my Excel sheet where I will show कि मैंने मॉक टू मॉक कैसे एनालाइज किया, क्या क्या चीजें मैंने नोट की, क्या मेरी कोडिंग थी, हाउ आई मेंटेन्ड अ गुड एक्सेल, एवरीथिंग आई विल शो टू यू, right? And then also in the upcoming days I will also share the section wise strategy to analyze each and every section deeply, right? So VRC में basically मैं क्या करता था, so मेरा मोटिव होता था, I was not good at VRC, so मेरा basically मोटिव होता था कि मैं जितनी भी mistakes करूं, right, उससे I would at least get one learning from each mistake, right? One learning from each mistake. And attempt strategy was my attempt strategy was to attempt four RCs, four RCs with or within 28 minutes, not more than 28 minutes, and all VA questions in 12 minutes. This was the maximum time that I used to give to each section, that is RCs and the VA. And इसमें my focus was or my strategy was to attempt the complete paper. ये मेरी खुद की strategy थी. Your strategy can be very different from this, but my strategy was to attempt each and every question of the VRC and each and every question of the VA. And over the time or over some months, I realized कि सारे question attempt करना सही बात नहीं है. I used to attempt all the RCs, I used to attempt all the question, or I used to go through all the questions, but सारे attempt करना मुझे इतना अच्छा लगा नहीं. इसीलिए what I used to do कि मुझे एक दो जो यहाँ पे hard लगे, I used to skip that question, और VA I used to try कि सारे attempt करूं या इनमें से एक कोई question छोड़ूं, right? My usual score was around 25 to 30 marks, right? And in the CAT I got 46, right? So how I reached from 25 to 46? So basically the improvement came from practice and analysis, right? Practice and analysis, right? Main practice is like the building block, and analysis is the main phase where you learn a lot of things, where you apply your learnings, where you apply the concepts and check whether the concepts are helping you or not to improve your score, right? मेरे साथ ऐसा होता था कि एक पॉइंट के बाद आफ्टर 25 आफ्टर 30 मार्क्स आई वाज स्टक कि अब क्या करना चाहिए, इसको पुश कैसे करना चाहिए. एंड स्लोली आई सो द इम्प्रूवमेंट कि मेरा मार्क्स 31 32 33 34 35 उस रेंज में जा रहे हैं, राइट? आई लाइक इन द इंटायर मॉक schedule I touched 40 plus score thrice or four times, not more than that for sure. But I used to score in the range of 30 plus after 12 or 13 mocks, right? Now I will tell you how I used to analyze the VRC, right? तो VRC में बेसिकली मेरा मोटिव यही होता था कि अगर मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया और लेट से मैंने पूरा नहीं किया, मैंने 3 RC किए हैं जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, राइट? Whenever I used to start analyzing the VRC, my focus was mainly to go through all the questions, if not the RCs. बहुत लोग बोलते हैं कि सारे RCs दोबारा पढ़ो. आई बिलीव कि RCs दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ो, है ना? एंड द मेन पॉइंट वाज व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज
I used to analyze the mocks or analyze the VRC section especially on the next day, right? So जैसे mocks, अगर mocks का window सैटरडे टू मंडे है, मैं मॉक्स मंडे को देता था क्योंकि सॉल्यूशन ट्यूसडे को आता था, एंड मैं फिर हैंड टू हैंड एनालाइज करता था। द रीजन फॉर दिस वाज कि जितनी जल्दी मैं एनालाइज करता था उतनी चीजें मेरे दिमाग में रहती थी कि हाउ आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग द मॉक। अगर वहां पे 2-3 दिन का अगर गैप आ रहा है तो आई यूज टू फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मैंने वहां पे किस रीजनिंग से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, क्या लॉजिक लगाया था। तो जितनी जल्दी मॉक एनालिसिस हो उतनी जल्दी मॉक को एनालाइज करो, राइट। फॉर द वीआरसी मेरा ये था कि चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे व्हेन आई गो, राइट, वहां पे मुझे ये देखना कि क्वेश्चन में अगर इफ आई अटेम्प्टेड द क्वेश्चन एंड माई आंसर वॉज रॉन्ग, आई यूज टू एनालाइज कि इसमें मैंने गलती क्या करी है, राइट। ठीक है, दिस इज ए ऑप्शन, दिस इज बी ऑप्शन, दिस इज सी ऑप्शन, दिस इज डी ऑप्शन। पहले ए में जाओ एंड ऑब्जर्व कि यहाँ पे आपने क्या गलती करी है एंड ऑथर ने क्या कहा है, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया, राइट। फिर बी में डू द सेम थिंग, सी में डू द सेम थिंग एंड डी में डू द सेम थिंग, कि आपने जैसे सोचा और जैसे एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार ऑप्शंस बहुत वियर्ड है, रीजनिंग बहुत वियर्ड है, गलत है, इलॉजिकल है। आई एग्री टू योर पॉइंट, टू सम एक्सटेंट इट फील्स लाइक कि जैसा होना चाहिए वैसी चीजें नहीं है। बट दैट इज द क्रक्स ऑफ द वीएआरसी कि अगर वो आपकी थॉट से अलाइन नहीं है तो आप गलतियां करते रहोगे, आपकी एक्यूरेसी बहुत लो आएगी। एंड यू हैव टू समहाउ अंडरस्टैंड द गेम कि आपको क्वेश्चन सेटर से मोर अलाइंड रहना है rather than to be more aligned with the author or with the someone who has written that passage, right? Because passage कोई बंदा लिखता है और उसके क्वेश्चंस फैकल्टी डिजाइन करती है, राइट। तुम्हें या इस बंदे से ज्यादा अलाइन रहना है, राइट। और अगर आपकी स्टार्टिंग फेज में आपको लग रहा है कि आपकी अलाइनमेंट नहीं बन रही, आपको समझ नहीं आ रहा, तब भी एक ही ऑप्शन है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में चार ऑप्शन एनालाइज किए, गो टू द सेकंड क्वेश्चन, देन डू द सेम एनालिसिस ए बी सी डी, go to the third question, even if you have got this correct question correct, right, फिर भी देखो कि अगर आपका ए आंसर करेक्ट है तो बी और सी और डी कैसे नेग्लेक्ट किए हैं। एंड ओवर द टाइम यू विल रियलाइज कि बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ मतलब हाउ वुड आई पुट इट, वो कुछ कुछ वर्ड्स की वजह से ही नेग्लेक्ट हो रहे हैं। या तो उसमें एक्सट्रीम वर्ड यूज हुआ है, राइट। अगर एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं हुआ तो देर इज समथिंग जो कि पूछा ही नहीं है, वो उसमें मेंशन किया हुआ है। या समथिंग हैज बीन आस्क्ड बट द अपोजिट इज मेंशन्ड। तो रिमूविंग वन और टू ऑप्शंस इज नॉट अ वेरी हार्ड टास्क, बट चूजिंग फ्रॉम द लास्ट टू ऑप्शंस इज अ टफ जॉब, राइट। वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है and do it for all the questions, do it for all the RCs, and try to maximize your attempt in the VRC over time. Now, when it comes to VA, right? VA में obviously some people like odd man out, right? Odd man out. Some people like summary question. Some people like para completion. Some people like sequencing question, right? Para jumbles, right? अब now first you have to figure out कि what type of person you are, because VA में by the time we reach VA, right, we have very left time, we have very less time left, right? तो उस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि आपको सबसे, एंड ये बेसिकली मतलब ओवर द टाइम यू विल रियलाइज कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी आपकी वीकनेस किस सेक्शन में है। इफ यू फील कि यू आर मोर कॉन्फिडेंट व्हाइल अटेम्प्टिंग द पीजे, स्टार्ट विद दैट। इफ यू फील दैट यू आर मोर confident while attempting the para summary or other questions, right, start with that। it's not like कि आपको वो करना ही करना है, ये करना ही करना है। बेसिकली जो आपको इजी लगता है, जो आपको सही लगता है, उससे स्टार्ट करो, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। एंड दिस स्ट्रेटेजी शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। एंड while analyzing, how you should analyze is कि आपको फिर, right, तो see, rather than seeing VA as something like a breakdown of 4 or 5 different topics, see VA as a collective subject, right? For example, when it comes to पीजेज और समरीज, राइट, तो पीजेज की जो थिंकिंग स्किल है वो कैसे स्टार्ट होती है। बेसिकली यू हैव 4 sentences, you have to make a story out of it, and what happens in the summary, you have all those 4 sentences in a sequenced manner, and you have to basically understand that passage or that 4 sentences and make a one line summary out of it, right? क्रक्स दोनों का सेम है, तुम्हें सिचुएशन समझनी है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर करना है, राइट। इवन फॉर द पैरा कंप्लीशन अगेन, तुम्हें स्टोरी समझनी है, पूरे 3 लाइन समझनी है और बताना है कि फोर्थ लाइन क्या होगी, राइट। सॉर्ट ऑफ सेम थिंग।
So while analyzing the VA part, you basically need to see कि तुम्हारी जो समरी है. सो बेसिकली हाउ आई यूज टू एनालाइज अ VA कि मुझे बस समरी पे फोकस करना था कि अगर चार चार सिचुएशंस दी हुई है, चार सेंटेंस दिए हुए हैं, पैरा समरी है, पीजे है. मुझे हर में यही होता था. पीजेस में बेसिकली माय फोकस वाज कि स्टार्टिंग सेंटेंस पहले मुझे देखना है कि स्टार्टिंग सेंटेंस क्या है. क्योंकि एट द वेरी स्टार्ट आई यूज टू फेस प्रॉब्लम्स while डिसाइडिंग ऑन द स्टार्टिंग सेंटेंस, राइट. एंड ओवर द टाइम फिर जैसे मैंने इंप्रूव किया, मेरे गलती होती थी कि अगर आंसर 2314 है मेरा, तो करेक्ट आंसर होता था 2341. नाउ बाय दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि ठीक है, मेरा 2 और 3 तो सही जा रहा है, राइट. मेरा गड़बड़ हो रहा है दो चीजों में. तो उसमें मुझे थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन सेटर से और अलाइंड होना पड़ेगा. एंड उसके लिए अगेन द प्रैक्टिस वाज द ओनली सॉल्यूशन एंड नथिंग एल्स, राइट. एंड इसका VA का प्रैक्टिस और VARC का प्रैक्टिस, आई वुड सजेस्ट कि वीडियो सॉल्यूशन है तो उससे अच्छे से समझ आएगा, उससे रेफर करो. अगर वीडियो सॉल्यूशंस नहीं है तो फिर टेक्स्ट से यू कैन practice, right? Basically, mocks में तो you will get video solutions for sure. So video solutions is the best source. And अगर video solution में एक बार समझ नहीं आ रहा तो try to rewatch the video multiple times, right? Till you get a very clear understanding कि ये option क्यों हुआ, ये option क्यों नहीं हुआ. Even then, if you are not getting कि ये option क्यों नहीं हुआ, and if your friend is getting कि अच्छा मुझे समझ आ गया ये क्यों select किया, right? हैव ए डिस्कशन विद हिम और हर, राइट, कि तुम किस तरह से सोच रहे हो, राइट. ऐसा तो नहीं है कि पूरे कैट एस्पिरेंट्स को ही वो ऑप्शन गलत लग रहा है, किसी ने तो सिलेक्ट किया होगा. ट्राई टू हैव ए टॉक विद योर फ्रेंड्स इन द ग्रुप्स और वन टू वन, एंड और इन वट एवर वे यू आर कंफर्टेबल, राइट. एंड देन कम ऑन द कंक्लूजन कि अच्छा मैं यहाँ पे गलत जा रहा हूँ. एंड देन मेक अ नोट, राइट. उसमें एक नोट बनाओ कि मुझे आगे से गलत नहीं जाना, मुझे आगे से ऐसा नहीं सोचना. एंड देन रीड दीज नोट्स before attempting the next mock, right. This is the simple, this is the best strategy. I used to devote 1 or 2 hours, approximate 2 hours for sure, to analyze the VARC section, right. I used to attempt all the questions, but still it used to take me 2 hours because मुझे पता था if I am investing a lot of time in the VARC, obviously I would be able to see the results. Maybe not now, but after 3 to 4 months, I would surely be able to see the results. And it happened, right. After some point of time you will get कि अच्छा यार मैंने वो एक बार क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये सेंटेंस बहुत एक्सट्रीम लग रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, राइट. इसमें ये पूछा है बट बताया कुछ हो रहा है, ये भी नहीं होगा. देन यू आर जस्ट लेफ्ट विद द टू ऑप्शन चॉइसेस. एंड उसमें भी इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ यू विल डिड्यूस समथिंग कि आपका लॉजिक कभी कभी वर्क करेगा, कभी कभी नहीं करेगा. एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन 100% accuracy in the VRC, right? 85% accuracy is also good in the VRC with good number of attempts, right? तो ऑलवेज इन द VRC और फोकस शुड बी कि जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जितना भी अटेम्प्ट कर रहे हो, पहली बात तो आपको समझ आना चाहिए. दूसरी बात, अगर आप कोई ऑप्शन चॉइस एलिमिनेट कर रहे हो, कोई ऑप्शन चॉइस सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसका एक लॉजिकल रीजन आपके दिमाग में एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल ही तुक्केबाजी मत करो. Because if you start doing this type of thing, then your mock scores would be very random. And then on the D-Day, you will not be very sure कि आपका percentile 90 आएगा या 10 आएगा, right? That then it would turn completely a luck-based game, right? And I don't want you guys to have that type of strategy when going to the real CAT day or when going to the your exam center, right? So this is मोटा मोटा strategy that I used to do, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. Because VRC में basically हाँ attempt strategy मैं बता सकता हूँ. See, different people have different attempt strategy, and let me talk about three people. Let's say first is A, second person is B, and third person is C. Right? मोटा मोटा these are the famous strategies that people use. So A used to attempt 3 RCs, right, and all VA, right. This is the first strategy. And this person used to attempt 2 RCs or sometimes 3 RCs, all VA or some VA, depending on whether he she has completed 3 RCs or not. This is my strategy. I used to attempt 4 RCs plus all VA. Right. Now, to be very honest, this was not something pre-decided. This was not something that I built over the months.
this was very natural to me. I don't know how. Because after 3 to 4 months I realized कि यार लोग 3 RC भी अटेम्प्ट करते हैं, 2 RC भी अटेम्प्ट करते हैं. बट आई वॉज काइंड ऑफ पर्सन जिसको लगता था यार अगर मैं 3 RC अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्यूरेसी के बारे में, मार्क्स के बारे में ज्यादा सोच नहीं पाता था एज अ नेचुरल ट्रेट, राइट. मुझे ज्यादा ये होता था कि आई एम मिसिंग 1 RC, एंड अगर वो मैं आरसी मिस कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं कौन से आरसी में कितनी एक्यूरेसी लाऊंगा, ठीक है. कुछ आरसीज मेरे लिए डिफिकल्ट होंगे, डिफिकल्ट टू रीड, कुछ आरसीज होंगे मेरे लिए इजी टू रीड. बट अगेन गेटिंग एन एक्यूरेसी इन दोज क्वेश्चंस आर कंप्लीटली और समवट अनरिलेटेड टू द लेवल ऑफ आरसी. मुझे आरसी डिफिकल्ट भी समझ आ रहा था, मुझे आरसी इजी भी समझ आ रहा था. बस मेरा प्रॉब्लम एक्यूरेसी का था, और वो मुझे पता नहीं था कि मैं डिफिकल्ट आरसी में अच्छी एक्यूरेसी लाऊंगा या इजी में अच्छी एक्यूरेसी लाऊंगा. आई वॉज टोटली अनक्लियर ऑन दैट पार्ट. एंड इवन today I am not very sure about accuracy part, right? So I used to attempt all the 4 RCs plus all VA, right? If we are this type of person, right, you don't need to aim fourth RC, right? You can, but ऐसा नहीं है कि you are missing a lot. If you're getting a good accuracy, good marks, then I think this strategy should also work. Generally, यहाँ पे लोग क्या करते हैं? People used to give 2-3 minutes to the selection of 3 RCs or to decide on which from which RC to start. Then वो ऑलमोस्ट मान लो वीए के लिए तो वो रखते हैं 15 मिनट, या हाँ अराउंड 15 मिनट, राइट. एंड देन रेस्ट ऑफ द 25 मिनट्स इज फॉर 3 RCs, ऐसा करते हैं, राइट. देन 2 RCs 3 RCs वाले क्या होते हैं कि दे आर अ बिट स्लो पीपल, और आई वुड से दैट दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन सिलेक्टिंग द राइट आरसी, राइट, सिलेक्टिंग द राइट आरसी. तो वो यहाँ पे 3-4 मिनट लगा देते हैं, एंड उनके 2-3 आरसी करने में लेट से दे टेक 10 मिनट्स, तो 20 मिनट्स यहाँ लग जाते हैं. वही 25 मिनट्स लग गए, तो रेस्ट ऑफ द 15 मिनट टू वीए, राइट. जो मैं करता था, मेरे में क्या था, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आई यूज टू टेक प्रेशर, कि मुझे प्रेशर नहीं था, मतलब मेरा टारगेट था कि इन द 7 मिनट्स और और इन वन पैसेज इन द 7 मिनट्स, और इन द 15 मिनट्स आई शुड कंप्लीट 2 RCs, राइट. आई शुड कंप्लीट 2 RCs, ये मेरा फोकस रहता था. तो मेरा जनरली सिनेरियो यही रहता था कि मैं आरसी थोड़ा फास्ट पढ़ता था, तो मेरा 3 मिनट के आसपास आरसी हो जाता था, है ना. 3 मिनट के आसपास आरसी हो जाता था, प्लस अराउंड 4 to 5 मिनट्स आई यूज टू गिव टू क्वेश्चंस. तो बेसिकली मैं क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम देता था, आरसी को थोड़ा सा पढ़ता पूरा था, अच्छे से पढ़ता था, बट कभी कभी 3 मिनट, कभी कभी 4 मिनट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आरसी और द टाइप ऑफ टॉपिक दैट कम इन दैट आरसी, राइट. ये करता था. एंड मेरा जनरली सिनेरियो ये होता था, बाय द 32 मिनट्स, जब मेरी स्क्रीन पे 32 मिनट दिखते थे, आई यूज टू बी डन विद द फर्स्ट आरसी, राइट. देन मेरा 25 मिनट्स के आसपास, 25 या कई बार 24, इतने के आसपास मेरा सेकंड आरसी हो जाता था, राइट. देन 17-18 मिनट के आसपास मेरा थर्ड आरसी हो जाता था. देन 12 मिनट, फिर मुझे 5-6 मिनट में आरसी अटेम्प्ट करना पड़ता था, एक्यूरेसी कई बार खराब भी हो जाती थी उस चक्कर में, है ना. ये सब आरसी करने के बाद 12 मिनट मेरे पूरे पक्के थे कि मुझे वीए को देने ही देने हैं. देर वॉज नो एस्केप टू दिस. 12 मिनट्स में देता ही देता था. कभी कभी बिल्कुल 10 मिनट से देता था, जब आरसीज कुछ ज्यादा डिफिकल्ट आ गए, कुछ लेंदी आ गए, या कुछ मेरी स्ट्रेटेजी बदल गई. बट 10 मिनट से कम मैंने वीए में कभी नहीं दिए. दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी. एंड just wait, let me bring something to you. If I can find my mock Excel, let me show you how I used to attempt. I think this is yes. So I'm just putting a screenshot. I will also share the full mock Excel sheet of my CAT 2022 attempt. So this, yeah, I think you can see now. So yeah, this is one of the screenshots of first few rows of my Excel sheet. So this is percentile of QA. Yeah, just see. दिस इज परसेंटाइल ऑफ क्यू है, दिस इज ओवरऑल परसेंटाइल. एंड ये जो मैं आपको नोट्स की बात कर रहा था ना, रिमार्क्स, दिस इज माय रिमार्क्स, राइट. मैं क्या करता था, देखो, पहला मॉक मैंने अपीयर किया, मेरे 99.8 99.28 आए, 99.22, 99.88, 100, 99.96. दीज आर माय ओवरऑल परसेंटाइल्स, ठीक है.
दीज आर माय रैंक्स। देन मैंने क्या देखा, वीआरसी इज इजी, इसमें मैंने कुछ वीआरसी में गलती करी होगी। डू बाय हार्ट, मेक एज मेनी केसेस एज पॉसिबल इन एलआरडीआई, गो थ्रू ऑल द केसेस, ये आगे है ना। फिर देखो वीआरसी का फिर नोट, क्योंकि मैंने वीआरसी इंप्रूव करना था। डू वीआरसी विद अंडरस्टैंडिंग स्टोरी इन आरसी, फॉर ए वीए डू व्हाट लाइक बट रीड बाय हार्ट, है ना। कुछ कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं अपने। वीआरसी में अगेन, डोंट फोकस कीनली ऑन आरसी व्हाइल रीडिंग, मेंटेन स्पीड, हैव टाइम फॉर वीए। इस मॉक में मैंने पक्का वीए को टाइम नहीं दिया होगा, तो मेरी लर्निंग थी हैव टाइम फॉर वीए। वीए आरसी लीव द डाउट क्वेश्चन, मतलब जब भी वीआरसी में डाउट आएगा वो क्वेश्चन को छोड़ दो, नेगेटिव मार्क्स मत लाओ। ये छोटी छोटी चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी। वीए में अगर कुछ काफी ओड लग रहा है तो एलिमिनेट कर दो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। पैरा समरी में क्या करना है, बेस्ट को सिलेक्ट करना है। पीजे में कनेक्टर्स को फाइंड करना है ना। तो ये सब वही है कि छोटी छोटी चीज मैंने अपनी, जैसे भी मुझे अ, थोड़ा सा उस टाइम दिमाग काम किया कि ये मेरी एक लर्निंग है। क्योंकि ये में आप ऐसी लर्निंग, वीआरसी में ऐसी लर्निंग नहीं ले सकते ना कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तो उसका सम क्या होगा, उसका स्क्वायर क्या होगा, ये सब लर्निंग नहीं ले सकते। बेसिकली यू हैव टू लर्न कि उस पे सॉफ्ट एस्पेक्ट्स आपने, व्हाट वर यू बीइंग नर्वस, और हाउ वाज योर mental state, what was you doing when you faced this type of question, what was your state of thinking, or what was your direction that you took at that point of time when you were nervous or when you were not able to solve uh, VA in 12 minutes, right? वो सब करो rather than कि मुझे ये आरसी नहीं आता, मुझे ये टॉपिक नहीं आता, बिकॉज अगेन कैट में कोई भी टॉपिक आ सकता है। एंड कैट डजंट एक्सपेक्ट कि कैंडिडेट्स को हर टॉपिक का पता हो। कैट जस्ट एक्सपेक्ट कि कैंडिडेट अगर कोई रैंडम टॉपिक पढ़े उसको वो समझ आए, एंड आउट ऑफ दैट द कैंडिडेट शुड बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन, राइट। ये बिल्कुल सिंपल फंडा है कैट का। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीआरसी एनालिसिस, राइट। इसमें कोई एक्स वाई स्ट्रेटेजी नहीं है। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जितना आप अपनी स्ट्रेटेजीज को खुद के हिसाब से कस्टमाइज करोगे, मॉडिफाई करोगे, खुद के हिसाब से बनाओगे, that should be called as personalized strategy. Don't let your mentors, don't let anyone else to teach you how to analyze the mock. Basically the process of the mock is कि आप mock पे बैठो, देखो आपने क्या गलतियां करी है, उससे लर्निंग लो, दैट्स ऑल, राइट। उसके बाद वो लर्निंग का जो आउटकम आया है, जो आपने उस लर्निंग से सीखा है, उसको नेक्स्ट मॉक में अप्लाई करो, या उस गलतियों को नेक्स्ट मॉक में मत रिपीट करो, राइट। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। आई होप यू like the video. If you want LRDI strategy, if you want to see how I used to analyze the LRDI section, how I used to analyze the QA section, or how you should analyze the LRDI and QA section, please comment on the video and I will share my approach for sure very soon. Thank you.